ठीक है, What did Conrad means by phrase Heart of Darkness? लेकिन 2012 में आया और फिर है discuss the significance of title Heart of Darkness. The phrase Heart of Darkness has been variously interpreted. अच्छा, यहाँ पे ये जो टाइटल है ना Heart of Darkness का, NKM में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपने उसको ना यहाँ पे ऐड जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे डार्कनेस का, ब्लैक एंड वाइट का जो है ना बड़ा कॉम्पैक्ट सा एक फर्स्ट पैराग्राफ उन्होंने दिया, वो आपने यहाँ पे जरूर ऐड करना है, ठीक है। बाकी बेशक सारा यही लिख दीजिएगा, लेकिन एनकेएम थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, करंट जरा इजी है, तो इस वजह से फिर बेशक बाकी ये लिख दीजिएगा, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ एनकेएम से जरूर ऐड कर दीजिएगा। द फ्रेज हार्ट ऑफ डार्कनेस हैज बीन वेरियसली इंटरप्रेटेड। लिटरली द टाइटल रेफर्स टू द डार्क कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, especially the territory of Congo. The phrase heart of darkness means the inmost region which was unexplored and the inhabitants of which were still primitive. ठीक है, एक तो उस रीजन तक पहुंचना था जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, शायद वो हमारा अपना ही हार्ट है, और दूसरा क्या था, वो जो इनहेबिटेंट्स थे जो कि अभी तक प्राइमिटिव हैं। दैट टाइम और वो तो चले प्राइमिटिव्स हैं ही हैं, लेकिन जो वहां पे पहुंचे वो भी प्राइमिटिव ही थे, ठीक है। अंदर उनके अंदर भी कोई ना कोई, जो व्हाइट्स वहां पे पहुंचे थे उनके अंदर भी एक प्राइमिटिव इंस्टिंक्ट थी, और स्टिल दे वर ब्लैक, ठीक है, उनके अंदर भी डार्कनेस थी। द टाइम व्हेन कॉनराड वेंट देयर इन 1890 द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका हैड नॉट बीन फुली एक्सप्लोर्ड. The action of the novel Heart of Darkness has been placed in the years preceding 1890 when Conrad himself went to Congo. The novel records Conrad's own experiences. The events at the beginning of the novel and the events at the close of the novel certainly occur outside the dark continent of Africa, but the major and the most significant events of the story take place in Congo. The most important portion of the novel deals with a white man called Mr. Kurtz, who falls under the influence of savages living in Congo. Some other features of the novel too justify the title Heart of Darkness. For example, the descriptions of the wild scenery of thick, almost impenetrable jungle. The picture of natives not fully visible to the white man. The natives peep at the intruders behind the trees in furtive and suspicious manner, and even attack them occasionally. The passages containing descriptions of the wild scenery are the most striking. For example, at one point in the novel, Marlowe says that sailing up the river Congo was like traveling back to the earliest beginnings of the world, when vegetation rooted on the earth and big trees were kings. Then he refers to great silence of impenetrable forest, where air was warm, thick, heavy and sluggish. He perceived no joy in brilliance of the sunshine in that particular region. One could lose one's way on that river as one might lose one's way in a desert. The stillness was not the stillness of the peace. The stillness was not the stillness of peace, it was stillness of a relentless force brooding over some mysterious purpose. So the description of this kind certainly conveys the heart of darkness. Similarly, Marlowe tells that night came suddenly and seemed to strike him blind. When the sun rose, there was a white fog, very warm and damp, and more buildings than the night. A little later, the fog lifted as a shutter lifts. The extreme kind of barbarism of natives reinforces the effect and intensifies the atmosphere of mystery and fear that were in the midst of darkness. On one occasion, the natives, seeing Marlowe's steamer sailing in the river, launched an attack upon them. On this occasion, Marlowe hears muffled rattle, then a very loud cry like a clamor. It gives rise to a feeling of terror in the hearts of all white men. Instantly, Marlowe finds a countless number of arrows flying about the steamer, killing the helmsman of the steamer. The white men retaliate by firing their rifles. But it is not the attack which creates the effect of darkness, rather it is the backwardness and the ignorance of the natives which create the effect. The natives had merely attacked the steamer on the instructions from their supreme commander, Mr. Kurtz. Mr. Kurtz summed up the whole essence of the barbarism
and the savagery of natives and him. Instead of civilizing the natives, Mr. Kurtz has himself become a barbarian. क्या हुआ था वहां पे जाके? बजाय इसके कि वो नेटिव्स को सिविलाइज करता, वो उनको प्राइमिटिव्स कहता था, उनको वो सिविलाइज करता, वो तो खुद बारबेरियन बन गया वहां जाके. ठीक है, अब क्या हुआ? He begins to identify himself with the savages and participate in their customs. उन्हीं के साथ उन्हीं की कस्टम्स में वो पार्टिसिपेट करता था. और फिर क्या करता था? And ceremonies, he has been presiding over the midnight dances, which always end with unspeakable rites. In Marlowe's opinion, Mr. Kurtz has indeed taken a high place among the devils of the land. He has been giving a free outlet to his monstrous passions in the company of the savages. He has been experiences abominable satisfactions without restraint. In short, यानी कि उसके अंदर जो है बर्दाश्त का मादा या एक अंदर का जो सेल्फ रिस्ट्रेंट थी वो मिस्टर कर्ट्स के अंदर नहीं थी. ठीक है, तो वो जो है विदाउट रिस्ट्रेंट जो है एक्सपीरियंस करता था एबॉमिनेबल सेटिस्फेक्शंस, यानी कि अपने आप को सेटिस्फाई हर तरह से वो करता था विदाउट एनी रिस्ट्रेंट. इन शॉर्ट, मिस्टर कर्ट्स हैज बिकम पार्ट ऑफ द डार्कनेस ऑफ द कॉन्गो एंड दे हैव बिगन टू रिगार्ड हिम एज मैन गॉड. ठीक है, वो जो है एक पार्ट हो गया था डार्कनेस ऑफ कॉन्गो. अब ये जो इसको कॉन्गो को डार्क कहा था ना, असल में इसी को चिनिया एशिबी ने फिर कहा था कि जो मार्लो है, सॉरी कॉनराड है, वो एक रेसिस्ट है. उसने ये कहा है कि भाई ये जो कर्ड्स है ना ये वहां जाके ब्लैक हो गया था. हालांकि वो कहता है कि ये इनकी इनर क्रूएलिटी थी, ये इनकी इनर डार्कनेस थी, जिसकी वजह से जो है कर्ड्स ने ये सारा कुछ किया था. और ये एम्पेरियलिस्टिक नेशंस जो हैं ये उनकी नेचर है या उनको लस्ट था एक लैंड का, चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल. इस वजह से इन्होंने इन डार्क कंट्रीज का जो है रुख किया था. एंड इवन देयर चीफ कम क्रॉलिंग टू पे देयर होमेज टू हिम. और उनके जो चीफ्स थे वो जो है उसके पास जब आते थे तो वो क्रॉल करके आते थे, क्योंकि उन्होंने उसको मैन गॉड बना दिया था. वो समझते थे कि ये अब हमारा मैन गॉड है, उनको कुछ भी चाहिए तो वो उनको कर्ज देगा. ठीक है, तो वो कहता है कि उन्होंने उसको मैन गॉड बना दिया था. जो उनके चीफ्स थे, वो उस इलाके के जो नेटिव्स थे, उनमें जो चीफ्स थे उन कबीलों के, वो इसको जो है इसके पास आते थे और उसको क्रॉल करके आते थे ताकि उसको होमेज दें. ठीक है, ताकि उसको कोई जैसे कहते हैं कि हदिया देते थे. ठीक है, एक तरह से. तो द फ्रेज हार्ट ऑफ डार्कनेस हैज येट another symbolic level of meaning. Marlowe's exploration of dark country is also an exploration of the depths of his own mind or the soul. The human mind is also like a dark continent. The exploration of this dark continent is perhaps even more difficult than the exploration of a dark country like Congo. Thus, Heart of Darkness may also be treated as a journey by Marlowe into his own subconscious mind or into the subconscious mind of all mankind. Marlowe's journey into Congo is metaphorically a psychological and anthropological journey. Heart of Darkness is symbolically a profound spiritual change in the voyager. Marlowe says that he had been able to arrive at the furthest point of navigation and the culminating point of experience. There are many passages in which Marlowe gives us a glimpse of his own mind. At one point he tells that he has always hated and detested life. एक पॉइंट पे मैंने कहा था ना, मार्लो कहता था कि वो हमेशा ही ऑलवेज, वो कहता था आई ऑलवेज हेट एंड डिटेस्ट लाइफ. ठीक है, और फिर बिकॉज ही हैज ऑलवेज फाउंड अ टेंट ऑफ डेथ एंड फ्लेवर ऑफ मोरालिटी लाइज इन इट. वो कहता है कि उसको ना ये झूठ के अंदर जो है क्या चीज नजर आती है, टेंट ऑफ डेथ और फ्लेवर ऑफ मोरालिटी. ठीक है, वो कहता है इसके अंदर टेंट ऑफ डेथ और फ्लेवर ऑफ मोर्टैलिटी है. In the same context, Marlowe also says that it is not possible for any man to convey others the life sensation of any particular period of his existence. He says, "We live as we dream alone." ठीक है, वो कहता है कि भाई कोई भी कन्वे नहीं कर सकता दूसरे की लाइफ सेंसेशन को, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड, अपनी किसी की भी मतलब लाइफ सेंसेशन को वो अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस के साथ जो है वो कन्वे नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है. वो कहता है कि ही सेज वी लिव एज वी ड्रीम, मतलब हम ऐसे रहते हैं जैसे हम अकेले ड्रीम कर रहे होते हैं.
एट अनदर पॉइंट मार्लो सेज दैट द माइंड ऑफ मैन इज कैपेबल, बेटा इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, द माइंड ऑफ मैन इज कैपेबल ऑफ एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज इन इट। ठीक है, वो कहता है कि इंसान का जो दिमाग है ना, माइंड, वो हर चीज के लिए कैपेबल है, क्योंकि उसके अंदर इवल भी है, उसके अंदर गुड भी है, तो कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो बदल सकता है। ये जो कहते हैं ना नेचर कभी बदलती नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंसान के बदलते देर नहीं लगती। नेकी करना और नेकी को संभाल के रखना, ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है। बाज़ औक़ात अब जैसे मेरा, अब आप एक्सपीरियंस देख लें, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि स्टूडेंट शुरू में आते हैं बड़े मतलब कीन होके पढ़ रहे होते हैं सारा कुछ, लेकिन एंड पे जाते जाते इतने स्लो हो जाते हैं कि मतलब यकीन नहीं आता ये वही वाला स्टूडेंट है जो अब इस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से हमारी नेकियां भी होती हैं। इसी तरह से इंसान, हम ये नहीं कह सकते कि एक इंसान एवल नेचर का तो इसकी कभी फितरत नहीं बदल सकती। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि हम कभी बदल नहीं सकते। अच्छा इंसान बहुत बुरा भी हो सकता है और बुरा इंसान बहुत अच्छा भी हो सकता है। और तारीख में अगर हम देखें, इस्लामिक हिस्ट्री में भी हम देखें तो हमारे सामने मिसालें हैं। तो इस तरह की बाज़ औक़ात जो कोर्स होती हैं ना, वो इंसान को ना होपलेस करती हैं कि फितरत कभी बदल नहीं सकती। जब हम किसी इंसान से हम थोड़े से होपलेस हो जाते हैं, हम एक ही बात कर देते हैं, इंसान की तो फितरत ही कभी नहीं बदल सकती। तो दैट इज द केस कि ऑलवेज बी होपफुल। अब वो क्या कहता है यहाँ पे, मार्लो भी सेम यही चीज कहता है। वो कहता है इंसान का जो माइंड है ना, वो हर चीज के लिए कैपेबल होता है, कुछ भी हो सकता है एट एनी पॉइंट। मार्लो टेल्स अस of the effect of on his own mind of savage sight of human skulls hanging outside Mr. Kurt's residence। वो कहता है कि वो जो इफेक्ट हुआ उसके माइंड पे जब उसने ह्यूमन स्कल्स देखे, ठीक है, इंसानों की खोपड़ियां देखी, मिस्टर कर्ट्स की रेजिडेंस के बाहर हैंग हुई हुई थी, पोस्ट के ऊपर उसने हैंग की हुई थी। मतलब अगर आप कभी आज ना इमेजेस देखिएगा जरा हार्ट ऑफ डार्कनेस के, उस हार्ट ऑफ डार्कनेस में कर्ट्स की एक झोंपड़ी है, झोंपड़ी के बाहर जो है ना उसके बहुत सारे पोस्ट लटके हुए हैं, यानी कि वो जिसको बैम्बूज उन्होंने जमीन में गाड़े हुए हैं, और उन स्टिक्स के ऊपर या उन बैम्बूज के ऊपर डिफरेंट स्कल्स, खोपड़ियां लटक रही हैं। और ये वो खोपड़ियां हैं उन यंग बॉयज की खोपड़ियां जो कि वहाँ के नेटिव्स ने, वहाँ के जो प्राइमेटिव्स हैं, उन्होंने इसको बलि दी थी, क्योंकि ये मैन गॉड था। या कोई भी इसकी अगर बात नहीं मानता था कर्ट्स की, तो उसको वहीं पे ज़िबा कर दिया जाता था उस इंसान को, और जो कर्ट्स था फिर वो खुश होता था उनको कत्ल करके। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि एट अनदर पॉइंट मार्लो, ये तो हो गया। लेटर मार्लो टेल्स अस ऑफ द इफेक्ट ऑन हिज ओन माइंड ऑफ मिस्टर कर्ट्स आर्गुमेंट्स डिफेंडिंग हिज एक्शन। अब देखें, इंसान बुरा होता है, फिर क्या करता है, उसको पता है मैं बुरा हूँ, लेकिन फिर वो अपने डिफेंड करता है अपने एक्शंस को, अपनी बुराई को। पता होता है अंदर से सब बुरा है, सब गलत कर रही हूँ, इसके बावजूद हम डिफेंड करते हैं। ठीक है, हम अपने आप को बड़ा डिफेंड कर रहे होते हैं, नहीं 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 ऐसे नहीं। एंड ही ऑल्सो रिवील्स टू अस द वर्किंग ऑफ हिज माइंड व्हेन ही गोज टू सी मिस्टर कर्ट्स इंटेंडेड। इन दीज केसेस मार्लो टेल्स अस नॉट ओनली अबाउट हिज ओन कॉन्शियस थॉट्स। अब क्या है, इन केसेस में मार्लो हमें बताता है अपनी ही कॉन्शियस थॉट्स के बारे में, बट ऑल्सो ट्राइज टू प्रोब हिज सब कॉन्शियस माइंड। अपनी कॉन्शियस थॉट्स के बारे में तो वो आपको बता रहा है कि अच्छा इन सारी चीज़ों का मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, लेकिन वो अपने भी सबकॉन्शियस माइंड में झांक के देख रहा है कि कहीं मैं भी ऐसा तो नहीं हो गया, ठीक है, मुझ पे कहीं ऐसा असर तो नहीं हो गया, कहीं ये डार्कनेस मेरे अंदर तो नहीं है। ठीक है, दिस सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो द हार्ट ऑफ डार्कनेस विच कॉनराड ट्राइज टू एक्सप्लोर। यही वो सबकॉन्शियस माइंड था जिसको कॉनराड कोशिश कर रहा था कि वो इसको एक्सप्लोर करे। A critic commenting upon the title of the novel says that it is the unknown, it is subconscious, it is also a moral darkness, it is the evil which swallows up Mr. Kurtz, and it is the spiritual emptiness which he sees at the center of existence. But above all, it is mystery itself, the mysteriousness of man's spiritual life. ठीक है, ये एक mysteriousness है of man's spiritual life की। आगे देख लेते हैं थीम ऑफ इम्पेरियलिज्म। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है ये क्वेश्चन। तो इसको तो बस जो है ना, इम्पेरियलिज्म को और जो अभी टाइटल पढ़ा है हमने, इसको तो बस पल्ले से बांध दें अच्छे तरीके से, ये तो आने ही आने हैं। इन दोनों में से एक सवाल जरूर आता है। थीम ऑफ इम्पेरियलिज्म।
ये थीम ऑफ इम्पेरियलिज्म जो है अभी 2016 के पेपर में भी आई थी, और मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, 2 क्वेश्चंस आए थे हार्ट ऑफ डार्कनेस में, दोनों थीम ऑफ इम्पेरियलिज्म पे ही थे, लेकिन दोनों में 19-20 का फर्क था। आपको मैं पेपर शेयर करूंगी, दोनों इम्पेरियलिज्म पे थे। एक में बताना था हमने सिविजरी, प्राइमेटिविज्म, और तीसरी थीम थी आई थिंक सेल्फ रिस्ट्रेंट की, ठीक है। दूसरा आया था इम्पेरियलिज्म पे, तो एम्पेरियलिज्म, और उसमें क्या एम्पेरियलिज्म कुछ इस तरह से थी कि उसमें हमने क्रूएलिटी के बारे में बताना था कि जी ये जो नेशंस आई उन्होंने क्या क्रूएलिटी की, ये था। आई थिंक ये फुल एक कंबाइंड क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि इस नॉवल के अंदर ना नैरेटेड 2 नैरेटर्स थे, ठीक है। एक जो था वो मैंने आपको बताया था फर्स्ट नैरेटर था, एक सेकंड नैरेटर था। अब जब मैंने की बुक से तैयार किया हुआ था ना, शुक्र है मैं टेक्स्ट पढ़ के गई थी, और जो आप लोगों को उस दिन मैंने हार्ट ऑफ डार्कनेस की करवाई है ना एक आउटलाइन स्टोरी, मैं वो पढ़ के गई थी। वहां से वो मुझे क्लिक हुआ कि अच्छा इसके अंदर 2 नैरेटर्स थे। अब पता नहीं उसका एक स्पेशल नेम होता है कि एक 2 नैरेटर्स, और पता नहीं क्या इसी तरह से कुछ नैरेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, उसको बस मैंने वो पकड़ लिया कि अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, इसके अंदर तो 2 नैरेटर्स थे। एक तो शिप के अंदर बैठा हुआ था, फिर उसने बाद में जो है मार्लो को हैंड ओवर किया था, कि फिर मार्लो ने अपनी स्टोरी सुनाना शुरू की थी, ठीक है। और जो कॉनराड है वो बीच बीच में कमेंट कर रहा था, ठीक है, सेम इज दैट जैसे टू द लाइट हाउस में ना। तो एक्चुअली जब आप डीप स्टडी करते हैं ना, तो इस तरह का कोई घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन हैंडल इट इजीली ना। तो बस वही चीज मेरे दिमाग में क्लिक कर गई। ऑल्दो ये पूरा फिर मैंने उसको एक क्रिटिकली एवेलुएट किया था, लेकिन मैंने इस तरह से स्टोरी सुनाई थी जैसे एक नैरेटर सुना रहा है, पहले फर्स्ट नैरेटर, देन ही हैंड्स ओवर टू मार्लो, एंड देन फिर मैं आगे लेके चली थी। एक्चुअली होते सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, सिर्फ वो क्या होता है कि वो जो थीम होती है ना फर्स्ट पैराग्राफ में, अगर आप वो सही तरह बयान कर दें और उसी चीज को, उसी कीवर्ड को बाकी पूरे जो आपकी राइटिंग है उसके अंदर अगर आप बार बार उसको रीराइट करते जाए ना रिपीटेटिवली, तो वो इंशाल्लाह वो आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन जाता है। और अगर वो वैसे क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, इनफैक्ट मैं आपको सही बताऊं, मैंने बस एक ही काम किया था, जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता होता था ना, मैं सेकंड लास्ट पेज के ऊपर ना जो लीफ मिलती है उसका सेकंड लास्ट पेज खोलती हूँ, और मैं उसके ऊपर ना काफी सारे पॉइंट्स बना देती हूँ, कभी तकरीबन 10 से 12 पॉइंट्स बना देती हूँ जो मुझे उस स्टोरी के याद होते हैं। जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस के मुझे काफी सारे पॉइंट्स याद थे कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था। कुछ कोट्स मैंने आपको बताया था, मैं लिख लिख के दीवारों पे पेस्ट करती थी, तो वो कोट्स मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। फिर वो जो कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म एडवर्ड सैड का मैंने पढ़ा हुआ था, उसकी तो कोट्स मुझे रट गई थी ना, और वो सारी कोट्स मैंने फिर हार्ट ऑफ डार्कनेस में डाली थी, तो वो वाली कोट्स मुझे याद थी। और मुझे ये सारा ये कल्चर, ये इम्पेरियलिज्म, वैसे भी मेरा बहुत, मुझे सब्जेक्ट ही बड़ा पसंद है कि इम्पेरियलिज्म पे कभी लिखना आ जाए तो मैं बहुत लिखती हूँ। तो खैर वो मैंने सारे पॉइंट्स बनाए, तो वो तकरीबन 17 to 18 पॉइंट्स ना वैसे ही बन गए अलॉन्ग विद कोट्स, ठीक है। तो अब वो मैंने एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखना शुरू किया, तो वो तो इतना लंबा आंसर बन गया उसका कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना लंबा भी बनेगा। तो कभी भी अनसीन क्वेश्चन आ जाए ना, पहले तो उसका जो थीम है ना, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा है उसको जरूर कवर करें। उसके बाद बेशक आप रिपीटेटिवली जो भी आपके दिमाग में एक स्टोरी चल रही है आप उसको बयान करना शुरू करते हैं, लेकिन द थीम जो आपके मेन में कहते हैं ना, कीवर्ड को अंडरलाइन किया करें। उसको अंडरलाइन जब आप कर देते हैं ना, तो आप कुछ लिख भी रहे होते हैं तो वो हाईलाइटेड चीज या अंडरलाइन हुई हुई चीज आपके दिमाग में बार बार आ रही होती है। अब है कंसीडर हार्ट ऑफ डार्कनेस एज अ पॉलिटिकल एलेगरी। दूसरा, डिस्कस द थीम ऑफ इम्पेरियलिज्म इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। Though the Heart of Darkness is a short novel, yet it has several themes. For example, theme of self-restraint, the theme of working of subconscious mind of man, the theme of exploration, the theme of influence of barbarism and primitivism on a civilized man, which he is cut off from a civilized society, and the theme of imperialism. Conrad's treatment of these themes was based on his own visit to Congo. Marlowe speaks at very beginning of the ancient Roman conquest of Britain that the ancient Romans were conquerors by using brute force. This conquest of Britain was robbery with violence.
Marlowe says that the conquest of another country means taking away all the things from those who have a different complexion or who have flatter noses than the conquerors have. Such a conquest is unpardonable. However, what can excuse such a conquest is the idea at the back of it that conquest can be excused only if the conquerors perform some constructive work in the country which they have conquered. वो कहते हैं ये वो जो कॉन्केस्ट कर लेते हैं उन एक कंट्री के ऊपर, एक टेरिटरी के ऊपर जो कब्जा कर लेते हैं, वो अनपार्डनेबल है, लेकिन उसको एक्सक्यूज किया जा सकता है अगर वो वहां पे उस कंट्री में जाके कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी कर दें. द वाइट मैन सर्टेनली हैज अ ड्यूटी टू द सेवेजेस. सेवेजेस कहते हैं क्रूअल, जालिम लोगों को, whom he subdues and whom he begin to govern. If he fails in this duty, his government of backward countries cannot be justified. अब वो कहते हैं कि जो वाइट जो मैन है ना, सर्टेनली उसके पास एक ड्यूटी है कि वो whom he subdues यानी कि उन सेवेजेस की, टू द सेवेजेस whom he subdues और whom he begins to govern, जिनको वो गवर्न करने जा रहा है या जिन पे वो काबिज होने जा रहा है. और अगर वो अपनी इस ड्यूटी में फेल हो जाता है गवर्निंग में, तो हिज गवर्नमेंट ऑफ बैकवर्ड कंट्रीज कैन नॉट बी जस्टिफाइड. तो उसकी गवर्नमेंट ऑफ बैकवर्ड कंट्रीज जो है उसको जस्टिफाई नहीं करना. अब जब भी थीम ऑफ एम्पेरियलिज्म आएगी तो बेटा वो जो कल्चर एंड एम्पेरियलिज्म, एक एम्पेरियलिज्म की डेफिनेशन थी वो जरूर इधर ऐड कीजिएगा. अगर वो ना मिले तो इंटरनेट से एम्पेरियलिज्म की डेफिनेशन लेके वो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा. मार्लोज एक्सपीरियंसेस, ऐसे एम्पेरियलिज्म की डेफिनेशन यही है कि वो क्या कहते हैं कि टू वो जो डिस्टेंट टेरिटरी वाली एक थी इनकी डेफिनेशन थी, टू मेरे जहन से निकल दी ये, मुझे तो खैर इनकी डेफिनेशंस ना रटी हुई थी. इनकी डिस्टेंट टेरिटरी वाली भी थी एक इसकी डेफिनेशन जो जोसेफ कॉनराड ने एडवर्ड सैड ने की थी. मार्लोस एक्सपीरियंसेस इन कॉन्गो क्लियरली शो दैट the white man there had failed to perform his functions. Instead of civilizing the savages, they became exploiters. The Congo was governed by Belgian King Leopold II, and the Belgian trading companies were sending their agents into Congo for trading purposes. The chief commodity was ivory. Ivory was of no use to the natives themselves, while the white man collected ivory and sent it to Europe. We find that ivory is being constantly mentioned. Ivory dominates the thoughts of the manager, the brickmaker, and several white agents who loiter around the central station and to whom Marlowe calls faithless pilgrims. Ivory also dominates the thoughts of Mr. Kurtz. He becomes obsessed with it. The manager of central station tells Marlowe that Mr. Kurtz collects more amount ivory than all other agents of company taken together, and the Russian tells Marlowe that on one occasion Mr. Kurtz threatened to kill him if he does not surrender a small quantity of ivory to him, which the Russian has received as a gift from a native tribal. रशियन मार्लो को बताता है कि एक ओकेजन पे वो जो कर्ज है उसके अंदर इतनी लस्ट ऑफ आइवरी है कि उसने उसको थ्रेट किया था कि अगर उसने वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आइवरी जो है जो रशियन को एज अ गिफ्ट मिली थी किसी नेटिव ट्राइबल चीफ से, तो वो कहता है कि अगर वो उसने ना दी तो वो उसको कत्ल कर देगा. यहाँ तक जो है कर्ज के अंदर ये आइवरी की लस्ट थी. हियर आइवरी सिंबलाइज द वाइट मैन्स ग्रीड. इतनी ज्यादा वाइट मैन के अंदर ग्रीड थी आइवरी की, एंड द वाइट मैन्स कमर्शियल मेंटालिटी, और उसकी वजह कमर्शियल मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी थी वो. द साइट सीन बाय मार्लो व्हेन ही गेट्स डाउन फ्रॉम द स्टीमर आर ऑफ अ वेरी डिप्रेसिंग काइंड. It depicts the wretchedness and the misery of natives of Congo and the sheer futility of white men's seemingly useful work. Marlowe sees a number of black people, mostly naked, moving about like ants. Later he sees half a dozen men chained to one another, and each wearing an iron collar around his neck. These men are criminals who have violated the laws. Marlowe feels deeply upset to see this sight. Furthermore, he sees black figures crouching under the trees, leaning against the trunks. They were dying slowly. These men were neither enemies nor criminals. They were only black figures representing disease and starvation
Marlowe feels as if he has entered into the gloomy circle of some inferno. These sights convey the callousness of white men towards the natives. All these sights clearly indicate the hypocrisy of the white men who are trying to show that some kind of constructive work is going on. There is project to build a railway line. A rock is being blasted with gunpowder, even though this rock does not stand as an obstruction in the way of the railway line. Likewise, he also sees a boiler lying unused in the grass and some pieces of decaying machinery and a large heap of rusty rails. Similarly, he saw a warship anchored close to the land and firing its gun into the forest aimlessly. This waste of effort and machinery offer a sharp contrast to the starving natives. The whole effort of white men is completely misdirected. It is a sad commentary on the efficiency of the white man that Marlowe could not get any rivets to repair the wrecked ship for week when these are needed badly. और ये भी एक सैड कमेंट्री थी, यानी कि वैसे तो वाइट मैन कहते थे कि हम बड़े एफिशिएंट हैं, हम बड़े जो है क्विक हैं काम में, हम बड़े हार्ड वर्किंग है, यही है ना पूरी दुनिया के ऊपर, यही तो इन लोगों का एक इमेज बना हुआ। लेकिन इनफैक्ट जब वो कंपनी के अपने बंदे को ही रिवर्ट्स चाहिए थे ताकि वो शिप को जो है वो सही कर सके, तो उनके पास मटेरियल ही नहीं था। वैसे वहां पे बर्बाद होने के लिए बहुत सारा मटेरियल पड़ा था, लेकिन जिस चीज की जरूरत थी वो चीज वहां पे मौजूद नहीं थी। The futility of white man's endeavor become even more evidence to see certain employees of the trading company which has seen Marlowe to Congo. The manager of Central Station could inspire neither respect nor love nor fear. He could inspire only uneasiness. Marlowe describes the brickmaker. क्यों उसने कहा मैनेजर ऑफ सेंट्रल स्टेशन को कि वो अनईजीनेस को सिर्फ इंस्पायर करता था, ना तो वो फियर को, ना लव को, ना रिस्पेक्ट को, सिर्फ वो अनईजीनेस को। यानी कि हर बंदे को, एक बंदे को उसने कहा हुआ था कि जाओ ये उसको एक बकेट दी हुई थी जिसके अंदर सुराख था और उसने कहा हुआ था कि जाओ इसके अंदर जाके पानी भर के लाओ, ठीक है। तो वो जो है अपने इर्द गिर्द के जो नेटिव्स थे उनमें अनईजीनेस एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करता था। Marlowe describes the brick maker as a paper mache Mephistopheles. Mephistopheles आपको पता है ये शैतान को कहते हैं, शैतान का जो चीला है। He makes no bricks. He acts as a spy for the manager. The agents loitering around the central station are idler, having no work to do but only to gossip, to speak ill of one another, and to hatch intrigues. Marlowe feels confused what possible benefit was these colonizers confer upon the savages there. Conrad conveys his strong disapproval and disapprobation of these white men. It is equally disgusting for Marlowe to watch the manner in which the cannibal crew of Marlowe's steamer are being treated by their white owners. The cannibals crew are most efficient. अब जो है वाइट मैन से कंपेयर किया जा रहा है कैनिबल्स को, गोश्तखोर इंसान को, ठीक है, कि वहाँ के जो नेटिव्स कैनिबल्स थे वो कैसे थे तो वो गोश्तखोर, लेकिन उनके अंदर सेल्फ रिस्ट्रेंट ज्यादा थे कि उन्होंने हंगर में भी मार्लो को नहीं खाया। उस शिप में वो भूखे थे लेकिन उन्होंने मार्लो को नहीं खाया। ऑल्दो मार्लो बड़ा फ्राइटेंड था कि ये मुझे खा जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं खाया, उन्होंने व्हाइट मैन को नहीं खाया। यानी कि उनके अंदर शायद सेल्फ रिस्ट्रेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाइट मैन। और व्हाइट मैन ने क्या किया, उनके लैंड पे जाके सब कुछ खा गए, ठीक है। अब वो कहता है इट इज इक्वली डिस्कस्टेड फॉर मार्लो टू वॉच द मैनर इन विच द कैनिबल क्रू ऑफ मार्लो स्टीमर आर बीइंग ट्रीटेड बाय देयर व्हाइट ऑनर्स। द कैनिबल क्रू आर मोस्ट एफिशिएंट, हार्ड वर्किंग एंड स्टडी फेलोज, बट दे आर नॉट फेड प्रॉपरली। उनको प्रॉपर कुछ खाने को भी नहीं दिया जाता था, और हालांकि वो इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, एफिशिएंट थे। The credit goes to the cannibal crew themselves that they exercise self-restraint and do not attack the white men on the board to kill them and eat their flesh. Thus the white men are absolutely unconcerned about the welfare of the men. वो वहाँ की वेलफेयर के लिए नहीं काम करने गए थे, ठीक है, वो टोटली अनकंसर्न थे। और इम्पीरियलिस्टिक नेशंस क्या करती हैं, वो यही तो करती हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाके बैठ जाती हैं कि जी हम आपकी वेलफेयर के लिए काम करने आए हैं, डिस्टेंट टेरिटरी पे वो कब्जा कर लेती हैं, और फाइनली क्या होता है, वो वहाँ की लैंड, चीप लैंड, रॉ मटेरियल और वहाँ के नेटिव्स पे कब्जा करके उनको बस वहाँ का जो है आपको पता है ये हबशियों को इन्होंने गुलाम भी बना लिया था। अफ्रीकन्स जो हैं ये बाकायदा सेल हुआ करते थे,
अमेरिका में, यूरोप में अभी भी होते हैं, ठीक है। उनके जो घर में जो मेड्स वगैरह होती हैं वो सेल कर दिए जाते हैं हमेशा के लिए। Thus the white men are absolutely unconcerned about the welfare of men on those labor and toil they are earning profit. जिनकी लेबर और जिनके टॉयल पे कौन प्रॉफिट अर्न कर रहा? व्हाइट मैन, ठीक है। तो फिर वो इन्हीं से लेबर करवाते हैं, उनको चीप लेबर मिल गई, आगे से बोलता भी कोई नहीं है। हमें क्यों छोटी उम्र की घर में मेड चाहिए होती है, ना बोलेगी ना कुछ करेगी, है ना। तो ये चक्कर है यहाँ पे सारा। इवन मिस्टर कर्ट्ज हैज डन नथिंग टू अपलिफ्ट द नेटिव्स, इंस्टेड ही हिमसेल्फ हैज बिकम अ सेवेज इन देयर कंपनी एंड फेल्ड टू एक्सरसाइज एनी सेल्फ रिस्ट्रेंट। वंस ही हैड रिटन डाउन द फॉलोइंग वर्ड्स कन्वेइंग एन ऑपोजिट मैसेज, एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स। इन फैक्ट इट प्रूव्स आयरॉनिक। अब क्या हुआ, कर्ट्ज ने क्या किया था नेटिव्स के साथ? उसने कुछ भी तो ऐसा नहीं किया कि नेटिव्स की कोई वेलफेयर हो, उसको वो अपलिफ्ट करे, बजाय इसके कि वो खुद एक सेवेज बन गया था उनकी कंपनी में रह के। और वो जो है अपनी सेल्फ रिस्ट्रेन को भी एक्सरसाइज नहीं कर पाया। एक तरफ से तो वो लिखता है कि जी एक ऑपोजिट मीनिंग, उसने शुरू में तो बड़ा लिखा कि जी मैं यहाँ के नेटिव्स को, उसने एक रिपोर्ट बनाई कि जी हम यहाँ पे नेटिव्स को अपलिफ्ट करने आए हैं, उनकी वेलफेयर के लिए काम करने आए हैं। लेकिन एंड उसने क्या किया उस रिपोर्ट का, एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, सारे ब्रूट्स को कत्ल कर दो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इनफैक्ट इट प्रूव्स आयरॉनिक। वो लिखता कुछ और था, अमल कुछ और करता था। In a nutshell, Heart of Darkness conveys to us deceit, fraud, robberies, arson, murder, slave trading, ठीक है, slave trading भी हुआ करती थी, and cruelty of the Belgian rule in Congo. Indeed, the brutal brutality of the Belgian imperialist rule is memorably captured through the novel. We can say that Conrad not only exposes the hollowness of the Belgian imperialist rule over Congo, but he also indirectly reminds us of British imperialism in various countries of the world. Conrad's denunciation of imperialistic rule in Congo has a valuable message for both the exploiters and exploited. उसने दोनों को मैसेज दिया है, एक्सप्लॉइटर्स को भी और एक्सप्लॉइटेड को भी। नेक्स्ट हमारी बेटा थीम है, दैट इज थीम ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आती। आ जाती है, बहरहाल 2011 के पेपर में आई हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। आ जाती है बस कभी कभार। शाज़ो नाज़िर माहम ने अपलोड किया थीम ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट। हाँ जी, अब कुछ क्लियर हुआ सुमेरा? अब कुछ क्लियर हुआ? हार्ट ऑफ डार्कनेस? यस मैम। शुरू में तो काफी मुश्किल लग रहा था आपको। यस मैम, उस वक्त तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या रहता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक्चुअली जब रिपीटेशन होती है ना, उससे भी काफी कुछ समझ आ जाती है। ठीक है, ये मैं आपको बेटा वो स्क्रीनशॉट्स शेयर करने लगी। अच्छा मैम, मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी, ये इम्प्रेशनिस्ट और इम्पीरियलिज्म एक ही चीज है? नहीं, दोनों डिफरेंट। यहाँ पे लिखा है जोसेफ कॉनराड द रियलिस्ट, द इम्प्रेशनिस्ट। ये इसके टेबल ऑफ कंटेंट में लिखा हुआ है एकेएम के, एनकेएम के। नहीं, इम्प्रेशनिस्टिक थीम अलहदा है। अच्छा। इसका ना आप डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है ना, उसमें देखिएगा, इसका काफी लंबी चौड़ी एक थ्योरी है ये इम्प्रेशनिस्टिक थीम वाली। थीम तो नहीं है, ये लिटरेरी टर्म है, सॉरी। ये जो इम्प्रेशनिस्ट थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने जो किया था ना, एक ये मैं आप नहीं, मेरे ख्याल में राइटिंग टेक्निक बिल्कुल जैसे नैरेटिव होते हैं उस टाइप का शायद कुछ। जैसे वो अगर जॉन एशबरी का पढ़ें तो हम कुछ और, जैसे अगर से ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल था पहले आपका, अब ये इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक यूज की हुई है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली वो टेक्निक, राइटिंग टेक्निक्स हैं, या वो जैसे वो किसी दौर के कुछ पोइट्स होते हैं ना, राइटर्स होते हैं, वो कोई एक स्टाइल होता है उनका, हाँ, उनका स्टाइल हो जाता है, या उनको एक टाइटल दे दिया जाता है कि ये इम्प्रेशनिस्टिक थे। जॉन वो जो आप लोगों ने पढ़ा था ना अमेरिकन लिटरेचर में, जॉन एशबरी, वो उसको भी तो इम्प्रेशनिस्टिक ही कहा गया था ना, कि उसने इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक यूज की है। वहां पे भी आपको ये वाला था, ये क्वेश्चन आया हुआ था पास्ट पेपर्स में। वो ये मैंने देखी थी 2015 में, ये 2015 में है ना ये इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक।
ये बेटा मैंने सेंड कर दिया, थीम ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट। अब जल्दी से कर लेते हैं, कल डिस्कस करते हैं। फिर इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक को पहले डिस्कस कर लेंगे और कल फिर हम उसके बाद जो है थिंग्स फॉल अपार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कल इंशाल्लाह हमने थिंग्स फॉल अपार्ट, बस आपके ये दो एक ही नॉवल मुश्किल था, थिंग्स फॉल अपार्ट इज वेरी इजी, वो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, वो उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। और उसके क्वेश्चन भी 4-5 ये तैयार करने वाले, उन 4-5 क्वेश्चन में से भी 2 आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। माइक ऑफ करना बेटा। थीम ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट, ठीक है। सेल्फ रिस्ट्रेंट किसे कहते हैं उर्दू में? कुव्वत बर्दाश्त को। व्हाट आर द मेन थीम्स दैट कॉनराड ब्रिंग आउट इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस, यानी कि अपने नफ्स को कंट्रोल करना, ठीक है। डिस्कस द थीम ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस। सेल्फ रिस्ट्रेंट इज वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस। दिस थीम इंक्लूड्स द हेल्पलेस surrender of a civilized man to the rights and customs of the savages when he stayed with them for a long period of time. Swear out the mic on it. The white men who have gone to Congo show no self-restraint. Though they have gone to Congo with mercenary motives, yet they show unlimited greed. Collection of ivory has become an obsession with them. Indeed, it has become their sole concern. Mr. Kurtz collects more ivory than all other agents put together. Mr. Kurtz जो थे वो ज़रा ज़्यादा आइवरी, बाकी एजेंट्स इतनी आइवरी नहीं कलेक्ट करते थे जितने मिस्टर कर्ट्स करते थे। Their desire for ivory knows no bound. They show no self-restraint in their pursuit of ivory. The most striking example of greed and self-aggrandizement is Mr. Kurtz, who knows no self-restraint at all. Mr. Kurtz has developed an unlimited passion for ivory and a passion for power. ठीक है, उसके अंदर एक अनलिमिटेड पैशन था आइवरी का और एक पैशन था उसके अंदर पावर का। लस्ट फॉर पावर उसके अंदर बहुत ज्यादा थी। Many times he was heard saying my ivory, my station, my intended, my career. ठीक है, उसके अंदर क्या था? वो कहता था हर चीज मेरी है। ये जो है ना इंसान की फितरत है। लस्ट ऑफ पावर जो है ना, ये इंसान इनबॉर्न उसके अंदर वो पैदा होता है ना, तो बच्चा मैंने बताया था ना आपको, हाथ बंद करके पैदा होता है, मुट्ठी बंद होती है उसकी। क्यों बंद होती है? वो बच्चा कहता है हर चीज मेरी है। मेरा आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिएगा। माई आइवरी माई स्टेशन, तो बच्चा भी तो यही करता है ना, तो बच्चे को सिखाना पड़ता है बेटा हर चीज आपकी नहीं है। तो वही बच्चा जिसको नहीं सिखाया जाता कि हर चीज आपकी नहीं है, वो बड़ा होके क्या बनता है? वो कर्ज बन जाता है, वो फिरौन बन जाता है, जिसको शऊर ही नहीं दिलाया गया। तो वो जब पढ़ लिख जाता है वो बच्चा, तो फिर क्या करता है? वो कहता है हर चीज मेरी है, चाहे वो छोटे बहन भाई हैं, चाहे वो बाहर के लोग हैं। फिर वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाता है, फिर वो क्या करता है? वो कहता है हर चीज मेरी है। फिर उसी में से एक बंदा वजीर आजम बन जाता है, वो कहता है हर चीज मेरी है। तो ये जो लस्ट फॉर पावर है ना, ये इंसान के अंदर एक इनबॉर्न जिसे कहना चाहिए बाय डिफॉल्ट इंसान के अंदर आती है। और थीम ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट यहाँ पे क्यों बताई गई? इसी को तो सुप्रेस करना है, इसी पावर को तो सुप्रेस करना है कि हर बंदे से हर चीज नहीं ले लेनी, ठीक है। कोई उंगली पकड़ाए तो पूरा बंदा नहीं खींच लेना, ठीक है। थोड़ी सी सेल्फ रिस्ट्रेंट रख के अपनी लिमिट्स में रह के सारे काम करने हैं। Indeed, Mr. Kurtz has become a devil seeking wealth and power. He does not allow a single tusk to remain everywhere above the ground of Congo. On one occasion, he was ready even to kill his friends, the Russian, for a small quantity of ivory which he did not wish to part with. He becomes in the eyes of native a demigod whom they worship. ठीक है, वो वहाँ के लोग उसकी पूजा करने लग गए थे। हम भी तो यही करते हैं, एम्परियलिस्टिक नेशंस को कहते हैं आ जाएं जी हमारे मुल्क में, हमारा ये काम करते। वो अल्टीमेटली पता ये चलता है कि वो हमारे रिसोर्सेज पे हावी हो गया। अभी भी वो जो पाकिस्तान में या सिंध के पास जो है ना काने हैं, मतलब ऑयल की और कोयले की और इस तरह की रॉ मटेरियल की काफ़ी सारी। अब वहाँ पे आपको पता है कौन है, किसका कब्जा है? वहाँ पे अमेरिकन का कब्जा है। जर्मन टीम कोई आई हुई है, एक अमेरिकन है या पता नहीं ब्रिटिश टीम आई हुई है, उन्होंने वहाँ पे, और वहाँ पे वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। सारा ऑयल बाहर जाता है पाकिस्तान का, गैस भी बाहर जाती है, और हमारे ही पाकिस्तानियों को उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानीज को उन्होंने वहाँ पे जो है डेली वेजेस पे रखा हुआ है। कैन यू इमेजिन? हमारी ज़मीन पे कब्जा, हमारी सारी गैस बाहर जा रही है, निकाल कौन रहा है? पाकिस्तानी।
ठीक है, तो अंदाज़ा करें कि ये सारा कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान में जितने रिसोर्सेज हैं, जितना रॉ मटेरियल है, क्यों कोई ब्रिटिश कंपनी को ठेके पे दिया हुआ है, कोई जो है जर्मन कंपनी आई हुई है, अब चाइनीज़ भी घुस गए हैं, तो सारी ज़मीन तो हमारी ठेकों पे गई हुई है। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ कौन है वहाँ पे? पाकिस्तानी। ठीक है, ज़मीन हमारी, एम्प्लॉयज़ भी हम ही हैं। चेक करें यहाँ पे, तो ये चक्कर है भाई सारा। तो इफ एनी he became in the eyes of natives a demigod whom they worship. Even the chiefs of the native tribes come crawling to pay their homage to him. If any natives rebels, कोई भी अगर native rebel बगावत करता था against his authority, he is executed and head of the fellow is hung upon a pole outside his residence to serve as an example. अगर कोई बगावत कर देता था ना उसकी अथॉरिटी के खिलाफ, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था, और उसका जो हेड होता था उस शख्स का, उसको लटका दिया जाता था अपॉन अ पोल आउटसाइड द रेजिडेंस टू सर्व एज एन एग्जाम्पल। लेकिन क्रूएलिटी का ये कर्ट्स का तरीका था, और कर्ट्स ने कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई थी, है ना। और मार्लो क्या सोच के आया था कि कर्ट्स क्या है? मार्लो तो ये समझ रहा था कर्ट्स एक बहुत अजीम इंसान है, वो अजीम पेंटर है, वो अजीम राइटर है, उसकी तो रिपोर्ट्स ही बड़ी ज़बरदस्त। मार्लो ने वापस जाके क्यों झूठ बोला कर्ट्स के बारे में? क्योंकि कर्ट्स का एक इमेज बना हुआ था। अगर मार्लो कहता ना कर्ट्स बुरा है, तो सारे मार्लो को पड़ जाते कि तुम हमारे हीरो को जो है बुरा कह रहे हो। ठीक है, मार्लो बुरा था, लेकिन ये सिर्फ कर्ट्स बुरा था, लेकिन ये किसको पता था? वहाँ के सारे लोगों को पता था, लेकिन कोई पीछे एक ब्रिटिश कंपनी को, ब्रसल में जो कंपनी थी, उसको बताना पसंद नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था अगर हमने बता दिया तो हम ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है, and nor does Mr. Kurtz show any self-restraint in the satisfaction of his primitive instincts, which have begun to dominate him. Mr. Kurtz lacks self-restraint in the gratification of his various lusts. He has become an active participant in the demonic practices and ceremonies of savages. Rather, he presides over their midnight dances, which always end with unspeakable rites, undoubtedly include sex orgies, sadistic and masochistic practices, human sacrifice and other obnoxious acts. ठीक है, उसने वहाँ जाके बहुत ही बुरे एक्ट्स भी करना शुरू कर दिए थे वहाँ के लोगों के साथ रह के। He has given a free outlet to his monstrous passions. अब जाहिर बात है वो वहाँ पे इंग्लैंड में रह के या लंदन में रह के तो ये सारे काम कर नहीं सकता था, ब्रसल में रह के तो उससे ये काम नहीं होने थे, क्योंकि वहाँ पे लोग देख रहे थे ना। यहाँ पे उसको देखने वाला, मना करने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है, तो इन द कंपनी ऑफ द सेवेजेस मिस्टर कर्ट्स सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड proprietorship has assumed abnormal proportion. Though he has become hollow at core, yet he is able to stir feeling of friendship and respect for Marlowe. Similarly, there is also a lack of self-restraint in the Russian, who has developed an attitude of worship towards Mr. Kurtz. Though the Russian is highly intelligent and well-educated man, yet he goes so far in his worship of Mr. Kurtz that he regards Mr. Kurtz as one of the immortals. Quite surprisingly, Marlowe himself develops an attitude of respect towards Mr. Kurtz, though Marlowe has discovered the truth about Mr. Kurtz, that Kurtz is hollow at core. ठीक है, कर्ट्स का अगर कैरेक्टर आ जाए या कर्ट्स के बारे में वैसे आ जाए तो आप ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, कर्ट्स इज होलो एट कोर एंड मिस्टर कर्ट्स हैज टेकन अ हाई प्लेस अमॉन्ग द डेविल्स ऑफ द लैंड एंड मिस्टर कर्ट्स हैज बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एविल। इसको भी आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। एक तो अ हाई प्लेस अमॉन्ग डेविल्स, उसके बाद एम्बॉडीमेंट ऑफ एविल आफ्टर हिज प्रोलॉन्ग स्टे अमॉन्ग द savages. Yet Marlowe himself falls under Mr. Kurtz's influence. At one point, Marlowe also says that Mr. Kurtz has been able to conquer his soul. इसको भी inverted commas में आपने लिखना है। Mr. Kurtz had been able to conquer his soul, and towards the end, Marlowe goes so far to interpret Mr. Kurtz's last word before dying as indicative of Mr. Kurtz's victory over the evil within him. अब क्या हुआ था? उसके अंदर जो इवल थी उसकी विक्ट्री हो गई थी। Thus even Marlowe shows a lack of self-restraint in his feelings of admiration and regards for Mr. Kurtz. मार्लो जो है उसने सेल्फ रिस्ट्रेंट अपने अंदर कहाँ पाया?
कि कर्ज की इतनी बुराइयां देखने के बाद भी वो उसकी तारीफ कर रहा था और उसका रिगार्ड कर रहा था, उसकी फिर भी वो इज्जत करता था. The theme of self-restraint also finds expression in the manner in which Marlowe has depicted the cannibal crew on his steamer. The cannibals were very hungry. They could easily have killed some of the white men on board and consumed their flesh, but they did not go to the extreme in order to satisfy their hunger. This self-restraint on the part of cannibals is quite puzzling and baffling to Marlowe, but it is highly commendable. Thus, in terms of self-restraint, the cannibals score a point over the civilized white men. According to an eminent critic, Mr. Kurtz has no restraint because he has no belief which is needed to tackle darkness. Therefore, Mr. Kurtz is unable to cope with the forces of savagery and malevolence within him. Mr. Kurtz's only defense is his eloquence, but this is not enough, as the heads on the polls shows that Mr. Kurtz lacked restraint in the gratification of his various lusts. And then the critic adds, in fact, nobody in the story has any real restraint except the most savage of all men, the half-starved cannibals on the board, the steamer, who amaze Marlowe by the fact that they restrain themselves from tucking into the pilgrims. This true restraint on the part of the cannibals is incomprehensible to Marlowe. It is one of those human secrets that baffle probability. ठीक है, ये बेटा आपका सारा कंप्लीट हो गया है. हार्ट ऑफ डार्कनेस के सारे ही क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं. नो वन, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रह गया. ठीक है, कर्ट्स का जो कैरेक्टर है ना, उसको एनकेएम से पढ़िएगा. वैसे कर्ट्स का कैरेक्टर आता नहीं है, मोस्टली वो इम्पेरियलिस्टिक जो थीम है वो ही आती होती है. और बस यहाँ तक आपका ये हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है वो कंप्लीट हो गया. तो मेरा कोई क्वेश्चन बेटा, एनीथिंग? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है. चलें दुआ कर लेते हैं. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.